Assalamualaikum and very good morning to my lovely student. How are you all? I hope you are all well at home. So welcome back to my mathematics class 4, chapter number 4, tick tick tick. So students, in my earlier video I have explained you till here page number 43. याद है ना, जिसमें हमने मुनिया की टाइमलाइन के बारे में we have drawn Munya's timeline, and also from the timeline we are having question answer also. That also we have did, right? Okay, now let's see students the further topic. Now students, here the discussion about Rani had now a pet. His name is Puppy, and Puppy after 2 weeks it opened its eyes and she watched it grow like this. यानी Puppy का अब students जैसे मुनिया का दिख रहा था that in the few months she started she has got her first tooth, then crawling, walking, stood up, right? So it grows in a months, but here the puppy grows in a weeks, even within a weeks, means after 3 weeks it got its first teeth. जबकि मुनिया को कितना टाइम लगा था, उसको 6 months लगे थे जब उसको फर्स्ट टाइम टूथ आया था. Yes or no? And started eating, और उसने खाना भी स्टार्ट कर दिया था. जबकि मुनिया ने फर्स्ट टाइम एट बनाना कितने मंथ्स के बाद, यानी उसने 11 सितंबर, एक साल बाद मतलब किया था, राइट, सितंबर 2006 में. देन आफ्टर 4 weeks इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वोबलिंग, यानी 4 weeks के बाद तो उसने चलना भी स्टार्ट कर दिया था, राइट. एंड इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज 7 months ओल्ड. जब वो 7 months ओल्ड हुआ तो उसके पास सारे टीथ आ चुके थे, right? And after 1 year it was a grown up dog and got its own puppies. अब जब वो 1 साल का पूरे 1 year का हो गया तो वो खुद भी एक डॉग बन गया. It has also its own puppies also. Okay, now students, here we have to compare the age between Munya and Puppy. Growths यानी started walking, यानी चलना कब start किया. तो students, here you can see that after 4 weeks it started, right? So about the puppy it took 4 weeks. So at that time he old how much? Puppies 4 weeks old. While students मुनिया जो है उसको कितना टाइम लगा था स्टार्ट वॉकिंग में. So here see students, मुनिया started walking in a February month, यानी 5th मार्च को बॉर्न हुई थी, यानी मार्च यानी थर्ड मंथ से लेकर पूरा साल, यानी वो 7 months हुए, 9 months तो वही हो गए, और फेब्रुआरी यानी 2 months मोर, यानी 9 + 2 कितने मंथ्स हो गए? 11. So that means students she old 11 months, है ना. ओके, एंड एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे ही लिखा था डेट आफ्टर 3 weeks इट गॉट फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग. जब उसको 3 weeks के बाद ही जब उसको उसके टीथ मिल गए थे, राइट, तभी उसने स्टार्ट कर दिया था खाना, राइट. एंड यहाँ पे 6 months एट फूड फर्स्ट टाइम, तो बनाना उसने 18 months के बाद खाना खाया था. कब स्टूडेंट्स? 18 months when मुनिया इज 18 months old. At that time she started first time, okay, and got her first tooth. तो हमने देखा था when she was 6 months old she got her first tooth. And here at the same time 3 weeks older, when puppy is older of 3 weeks, राइट, जब वो 3 weeks का ही था ना तभी उसको जो है उसके फर्स्ट टूथ भी आ गए थे, एंड इट स्टार्टेड ईटिंग ऑल्सो. Yes or no? So students, here you can see that Munya is growing in the months while puppy takes a weeks to grow up their self, right? Now on the next page students, here you can also find out the different animals or different having different their growing growth. Like for example hen, cow and bird. You can also search about it that how hen grows, how cow grows and how bird grows. Okay, now students, here are the some grandparents picture were there. Okay, they are posing for their photograph. First one is elephant Appu's grandfather who is 95 years old. Here Chuchu Rat's grandfather who is 2 years old. Here is the Rani's grandfather who is 70 years old. Now students, according these 3 pictures we have to answer the following question. First question is that students, that how much older is Appu's grandfather than Rani's grandfather. Older मतलब ज़्यादा एज होती है ना. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, एलिफेंट ग्रैंडफादर इज 95 years old while Rani's grandfather is only 70 years old, है ना. तो आप देख सकते हो कि इनकी एज ज़्यादा है कंपेयर टू रानी.
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच ओल्डर, यानी कितनी ज्यादा है. सो from the age of Apu's grandfather, if we are subtracting the Rani's grandfather, so we will get that how much old they are. Yes or no? How much Apu's grandfather is older? So 5 minus 0, 5, 9 minus 7, so 2. So that means 25 years older. Okay, Apu's grandfather is how much older? 25 years older. Okay, question number 2. Will Chuchu's grandfather ever grow as old as Apu's grandfather? यानी ये जो चूचू है ना, उसके अब वो मतलब स्टूडेंट्स वो ओल्डर है, ग्रैंडफादर है तो भी ओनली 2 years ओल्ड है, तो क्या वो अपू की एज तक पहुंच पाएगा? यस और नो? 2 साल में ही वो बुढ़ा हो गया है, मतलब उसकी एज हो चुकी है स्टूडेंट्स, तो क्या वो 95 years तक जा पाएगा? एनी आंसर? नो, इट वॉन्ट, है ना, नहीं जा पाएगा ना. 2 years और कहाँ 95, इट इज सो मैनी years. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मच यंगर, यंगर मतलब छोटा होता है ना. इफ यू आर हैविंग अ बिग सिस्टर मीन्स आप बोलते हैं उसको एल्डर सिस्टर, और अगर आपकी छोटी बहन है सो यू यूज यंगर. सो हियर हाउ मच यंगर इज चूचू रेड्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर. यानी आप देख सकते हो कि चूचू का रेड का जो ग्रैंडफादर है वो 2 years ओल्ड है, जबकि रानी का 70. यानी ये जो चूचू है रानी के ग्रैंडफादर से तो एज में छोटा है, बट कितना छोटा है वी हैव टू कंपेयर इट, राइट. So whenever we have to compare students, we have to do the subtraction from Rani's grandfather age to Chuchu's red grandfather age. If we are subtracting, so we'll get answer 68 years. अब हम यहाँ पे older नहीं लिखेंगे, we are asking for younger, so we have to write down it here 68 years younger. Yes or no everyone? Understood? Okay, now let's see student next. Okay, now students, here now holidays are fun. So now students, here we are having two people. One is Atif, who is first time writing a letter to its Shabana Appa. वो अजमेर से है and he is writing this letter started from the 1st May 2006. Means he has written, Dear Shabana Appa, hello, how are you? I am fine here Appa. My holidays have started from today. Today यानी जिस डेट से वो लिख रहा है, यानी 1st 5/06 से उसकी हॉलीडेज स्टार्ट हो रही है, ठीक है. एंड आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5/5/2006. आई विल बी बैक ऑन 25/2006. यानी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि वो 5th डेट को जा रहा है और 20 को अपने नानी के यहाँ से वापस आ रहा है. यानी वो कितने डेज के लिए वहाँ पे रुकने वाला है, यानी 20 - 5, यानी वो 15 डेज के लिए अपने नानी के यहाँ पे रुकने वाला है, ठीक है. सो माई स्कूल विल रीओपन ऑन 30/6/2006. यानी वो 1st 1/5/2006 से उनका वैकेशन स्टार्ट हो रहा है और 30/6/2006 को उनका वैकेशन एंड हो जाएगा. ओके, सो व्हेन डज योर स्कूल क्लोज? व्हाई डोंट यू कम हियर? वी विल हैव अ ग्रेट फन टुगेदर. ओके, बाय फ्रॉम नाउ. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर शबाना हु स्टेज इन नागपुर, जो शबाना आपा को जिन्होंने लेटर लिखा था, राइट, आतिफ ने, वो नागपुर में रहते हैं. एंड गॉट दिस लेटर ऑन 6/5/2006. यानी उसने 1st डेट को लिखा था, राइट, 1st डेट ऑफ 5th मंथ. यहाँ पे भी 5th मंथ की 6th डेट को वो लेटर मिला. यानी स्टूडेंट्स कितना टाइम लगा अजमेर से नागपुर पहुँचने में? यानी 1st डेट के बाद अगर आप काउंट करो तो 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, यानी कितने डेज लगे? इट टेक्स 5 days टू रीच एट द नागपुर. ओके, मैं ये सब सॉल्व करके क्यों दिखा रही स्टूडेंट्स? बिकॉज इन द नेक्स्ट पेज वी आर हैविंग क्वेश्चन आंसर, सो दैट वी हैव टू राइट डाउन इट. दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग इट. ओके, now students, here now Shabana Appa writing letter given written answer to Atif. She is start writing on 7/5/2006. So I'm doing well here. I got your letter yesterday. Happy holidays. My school will close on 1st June 2006. यानी 1st जून से उनका कब वैकेशन स्टार्ट हो रहा है? 1st June 2006. Okay. देन इट विल रीओपन ऑन 10th of August. यानी वो ये डेट को स्टार्ट हो रहा है और 10th August यानी कौन सा महीना? 8th month 2006 को उनका वैकेशन एंड हो रहा है, ठीक है. आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन 7/6/2006. में अब स्कूल में से हमें गोवा ट्रिप पे ले जा रहे हैं और मैं 7th डेट को वहाँ से रिटर्न हो जाऊंगी. एंड आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट. बाय शबाना.
Okay students, now on the next page students, here the two question answers given which I am having which I have taken in as a CW work means now write which date this stand for. यानी यहाँ पे आपको 5506 यानी 5 एज इट इज और नंबर ऑफ मंथ हियर इट इज गिवन 5th वन. यानी अगर आप नंबर ऑफ मंथ काउंट करो तो 5th नंबर पे कौन सा महीना आता है. सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मीन्स 5th मई 2006. आपको ये 06 को भी फुल फॉर्म में लिखना है 2006. मीन्स स्टूडेंट्स हियर वी हैव टू राइट डाउन इन अ फुल फॉर्म लाइक दिस. सो 2506 यानी यहाँ पे क्या आएगा 25th मंथ कौन सा होगा मई. सो 20 मई और ईयर कौन सा है स्टूडेंट्स 2006. सो ईयर 2006. क्लियर. देन 7606 यानी 7 और 6th मंथ कौन सा है. इफ 5th वन में सो 6th वन वुड बी जून. सो 7 जून 2006. क्लियर. देन आफ्टरवर्ड स्टूडेंट्स 1107 यानी 1 और फर्स्ट मंथ हमारा कौन सा है जनवरी. सो फर्स्ट जनवरी और ईयर यहाँ पे चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स. कैन यू सी 07 मीन्स 2007. क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स राइट दिस डेट इन आवर नंबर्स. अब यहाँ पे हमें ये फॉर्मेट दिए है. नाउ वी हैव टू राइट डाउन इन दिस फॉर्मेट. सो 1 जून 2006 यानी 1 जून यानी कौन सा महीना होगा 6 और 2006 विल बी राइट इन अ शॉर्टकट फॉर्म 06. देन 30 मई 2006 यानी 30 मई यानी 5th वन और 2006 यानी 06. देन 10th अगस्त यानी 10 अगस्त यानी 8 मंथ और ईयर 2007 है यानी 07. क्लियर एवरीवन. सो स्टूडेंट्स दिस सेम एक्सरसाइज आई हैव गिवन एज अ CW वर्क ऑल्सो. राइट PDF फॉर्म में आपको ये CW सेंड किया है जिसमें आपको डेट इस तरह की वे में है. आपको नेम ऑफ द मंथ लिखना है. द नेम ऑफ द मंथ गिवन यू हैव टू राइट डाउन इन द शॉर्टकट. ओके. नाउ स्टूडेंट्स हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना. अजमेर से लेकर नागपुर जाने में कितने डेज लगते हैं 5 days. सो हियर स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट डाउन इट 5 days. एंड हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस. ये भी हमने देखा था ना कि वो 5th डेट को जाता है और 20 को रिटर्न होता है यानी 20 - 5 यानी कितने डेज के लिए वो स्टे कर रहा है 15 डेज के लिए. राइट. सो हियर वी हैव टू राइट डाउन इट 15 days. क्लियर. Now students here we have to discuss the how many number of days they are getting holidays. Right. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है students here that 1506 से उनका वैकेशन स्टार्ट हो रहा है आतिफ का एंड 36 2006 को फिनिश हो रहा है. वाल शबाना आपा का जो है वो कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहा है 16 2006 से स्टार्ट होके 10/8 2006. सो हियर 16 2006 से स्टार्ट हो रहा है और 10th of August तक उनका वैकेशन है. ओके. एंड आतिफ का 15 2006 से स्टार्ट होके 36 2006. हमें नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं यानी स्टूडेंट 6th का पूरा महीना यानी 30 डेज होते हैं जून के और जुलाई का भी पूरा महीना यानी 31 डेज और अगस्त के 10 डेज यानी 0 + 1 1 + 0 1 3 + 3 6 + 1 7. तो कितने डेज होंगे 71 डेज का हॉलीडेज है शबाना का. आतिफ का कितना है 1 मई यानी मई के 31 डेज होते हैं है ना स्टूडेंट्स और 30 जून यानी 30 डेज जून के. सो 1 + 0 1 और 3 + 3 6 यानी आतिफ के होंगे 61 डेज. ओके. नाउ हु हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडेज शबाना और आतिफ दोनों में से किसको ज्यादा हॉलीडेज मिल रहे हैं. ऑब्वियसली शबाना गेट मोर. सो हियर आई हैव टू टू कॉर्नर शबाना. Okay students, and this one you can fill up by yourself and if you want to cancel it out you don't want to fill you can. यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको समर हॉलीडेज कितने मिलते हैं ऑटमन विंटर एंड हॉलीडेज. yes or no. So you can do it by your own self. Now students on the next page here now students we are going to discuss about the expiry date. Have you seen students एक्सपायरी डेट. आप जो चीज़ें को बाई करने जाते हो छोटा सा चॉकलेट हो या कोई पैकेट का वेफर हो राइट. तो स्टूडेंट्स एवरीथिंग द थिंग्स विच वी आर बाइंग फ्रॉम एनीवेयर एनी शॉप और एनी मेडिकल राइट एवरीथिंग हैविंग इट्स पैकिंग डेट एंड इट्स
एक्सपायरी डेट, यानी एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ हम कितने टाइम तक उसको यूज़ कर सकते हैं, कब तक वो हमारे लिए यूजफुल है, देन इट इज़ हार्मफुल फॉर अस. ओके, एवरीथिंग. सो हियर स्टूडेंट्स, चंद्रन इज देयर, जो शॉपिंग के लिए गया है 15 मई 2006 को, वो बाई करने गया है बटर, उसको बटर चाहिए और वो चेक कर रहा है उसकी एक्सपायरी डेट. वाई ही इज चेकिंग इज पैकिंग एंड एक्सपायरी डेट टू फाइंड आउट दैट वाज इट सेफ टू ईट और नॉट. Okay, so here the expiry date written that best before 180 days from the date of packing, यानी जिस दिन को ये पैक हुआ है उसके बाद वो 180 डेज तक यूज कर सकता है. तो स्टूडेंट्स आप देखोगे each month having, if you are considering 30 days, so 30 days 30 days 30 days 30 days 30 days and 30 days, so 30 plus 30 60 plus 30 90 plus 30 120 plus 30 150 plus 30 180, यानी कितने मंथ्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी स्टूडेंट्स ये जो है वो 6 मंथ्स तक ये बटर को यूज कर सकता है आफ्टर द डेट ऑफ पैकिंग. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द इट्स पैकिंग डेट. दैट ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, इट वाज रिटन 15/1/06, यानी 15 जनवरी 2006 उसकी पैकिंग डेट है. और स्टूडेंट्स वो 6 मंथ के बाद एक्सपायरी हो जाएगा, यानी 15 और 1 के बाद 6, यानी 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी ये जो पैक है वो 15/07/06 को ये पैकेट एक्सपायर हो जाएगा. ठीक है, 15 जुलाई को. ओके, सो फाइंड आउट इट इन विच मंथ वॉज द बटर पैक, कौन से महीने में पैक हुआ है स्टूडेंट्स, जनवरी. फर्स्ट मंथ इज अ जनवरी, सो हियर यू हैव टू राइट डाउन इट जनवरी. एंड विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15/1/06, यानी अगर वो 15/1 से पैक हो रहा है तो आपको मैंने देखा था ना कि 6 मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, यानी 7th मंथ, और 7th मंथ कौन सा है, जुलाई. सो आंसर इज हियर जुलाई. एंड कैन चंद्रन ईट ऑन 15 मई 2006, क्या वो 15 मई यानी 5th मंथ 15/05/2006 को क्या ये बटर यूज कर सकता है, ऑब्वियसली यस. क्यों यस स्टूडेंट्स, क्योंकि वो 15/07 तक ये बटर को यूज कर सकता है, और यहाँ पे तो 15/5 यानी 5th मंथ है तो वो कर सकता है ना. Okay, so here your answer is yes. Now students, here we are having a expiry date of a cup syrup. Here it is written manufacture date which is 7/3. तो students ये जो 07 है which indicates the month and 03 indicated year, यानी जुलाई 2003 उसकी मैन्युफैक्चर डेट है एंड एक्सपायरी डेट है जुलाई 2005, वो एक्सपायर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस शोज दैट मंथ एंड अ ईयर, या मैंने जैसे बोला था ना, दिस शोज मंथ एंड दिस शोज द ईयर. सो व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 07/05, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. 07 यानी कौन सा महीना होगा, जुलाई, एंड 05 मीन्स विच ईयर, 2005. Clear everyone? Okay, now would it be safe to take the cough syrup in September 2005, यानी September 2005 यानी 9 month 05 को क्या ये यूज कर सकता है. आप देख सकते हो स्टूडेंट 7/5 को ये एक्सपायरी हो चुका है ऑलरेडी, तो क्या वो 9 month 05 को ये सिरप यूज कर सकता है, yes or no? So obviously no, it can't use, है ना, because on July 2005 it would be expired. Now students, next is here the students Tuntun missed the train. So students, in this topic there is a story of a Tuntun जो अपने नानी के यहाँ पे हॉलीडेज करने गया था, समर हॉलीडेज. वो बहुत सारे अपने कजिन से मिला, राइट, बहुत एंजॉय किया, बट वो अब टाइम हो गया था घर जाने के लिए. तो टुनटुन की मम्मी जो है उन्होंने बोला पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग, यानी शाम के 5:30 बजे हमारी ट्रेन है, राइट. बट टुनटुन डोंट वांट टू गो, सो ही वाज टेकिंग काश कि हम ये ट्रेन मिस हो जाए और मुझे और डेज के लिए रुकना पड़े. सो स्टूडेंट्स, टुनटुन एंड हिज पेरेंट्स रीड एट द 5:15. सी हियर व्हाट टाइम, 5:15. बट गेस व्हाट, दे एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन. देखो 5:30 को शाम को उनका ट्रेन था, बट वो 5:15 को टाइम से पहले पहुंच गए थे, फिर भी उनकी ट्रेन मिस हो गई. कैन यू टेल मी व्हाई, कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? एनी गेसेस? यस स्टूडेंट्स, आप लोग ने नोटिस किया होगा कि हमारा जो टाइमिंग है, हमारा जो क्लॉक घर पे होता है, हियर इट इज नंबर गिवन फ्रॉम 1 to
12 ओनली, है ना, 12 नंबर्स तक ही यहाँ पे दिया होता है. बट स्टूडेंट्स सम आर हैविंग डिजिटल क्लॉक. ऐसे डिजिटल क्लॉक्स होते हैं जिसमें आवर और मिनट्स शोज करते हैं. तो कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि 17:30 भी लिखा हुआ है, राइट. तो 17 जो 12 से भी ज़्यादा होता है. तो स्टूडेंट्स हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द 2 फॉर्मेट्स ऑफ अ वॉच. यानी फॉर्मेट्स और टाइमिंग हम 2 फॉर्मेट्स में इंडिकेट करते हैं. वन विच इज शोज 12 आवर्स, अनदर विच इज शोज 24 आवर्स. 12 आवर्स की फॉर्मेट होती है और 24 आवर्स की. यानी 12 आवर्स की फॉर्मेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 से लेकर रात के 12 बजे से स्टार्ट करें. सो 1 2 3 4 होके दोपहर के 12 बजे का 12 नून तक, राइट. 12 होते हैं, वापस से सेम टाइम रिपीट होता है. यानी हर टाइम पूरे दिन में 2 टाइम्स होता है ना. हमारा देखो आप सबको पता है 10 o'clock मॉर्निंग भी होता है और 10 o'clock एट नाइट भी होता है. यानी 12 आवर्स में जो है हर टाइम 2 टाइम्स इन अ डे आता है, पूरे दिन में 2 टाइम्स आता है. जबकि 24 आवर्स में क्या होता है कि वो 12 आवर्स सब रात के 12 मिडनाइट से लेकर दोपहर के 12 नून तक एज इट इज रहेगा 12. बट आफ्टर 12 नून जब वो दोपहर के 12 बजने के बाद वापस से 1 o'clock होता है, इट विल शोज 13 आवर्स. यानी वो दिखाता है कि वो 13 आवर्स हुए. 2 होंगे तो 14 आवर्स एंड सो ऑन, राइट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टुनटुन का भी सेम यही हुआ था कि उनको 5:30 लिखा था. मीन्स इन द ट्रेन दैट इज दे यूज 24 आवर्स फॉर्मेट. वो लोग जो ट्रेन वाले थे, रेलवे स्टेशन था वहाँ पे 24 आवर्स की फॉर्मेट थी. और 5:30 मतलब था 5:30 इन द मॉर्निंग और वो पहुंचे इवनिंग को. दैट्स वाई दे मिस दैट ट्रेन. क्लियर एवरीवन. रेलवे टिकट जो रेलवे वाला था उन्होंने सारी कंफ्यूजन क्लियर की. मीन्स इफ इट इज इवनिंग टाइम इट विल बी शो लाइक दिस 17:30, है ना. 12 के बाद 5 आवर्स मीन्स 17:30. Okay, now students here the 12-hour clock time is given and we have to convert it into a 24-hour clock time. So 1 o'clock after 12 1 o'clock यानी 13 hours, 2 o'clock यानी 14 hours, 3 o'clock यानी 14 के बाद 15 hours. So here 15 hours. Okay, and 3:30 means 15:30 hours. 6 o'clock यानी after 12 you have to count 6. So after 12 13 14 15 16 17 and 18. So क्या टाइमिंग होगा स्टूडेंट्स, 18 hours. Okay, 9 o'clock यानी होंगे 21 hours. Yes or no? You can count after 12 till the 9. Then 12 o'clock at midnight यानी रात के 12 बजे जब स्टूडेंट्स हो जाता है तो आप उसको 00 आवर्स कंसिडर कर सकते हो या फिर आप उसको 24 आवर्स भी कंसिडर कर सकते हो, राइट. सो हियर यू हैव टू राइट डाउन इट 15 00 आवर्स, 18 आवर्स, 21 आवर्स एंड 00 आवर्स या फिर आप 24 आवर्स भी बोल सकते हो. And students here if you want to suppose show the timing 8:30 at night यानी रात के 8:30 बजे तो उसको किस तरह से दिखाओगे, 20:30. नाइट का टाइम है मीन्स ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इट पासिस आफ्टर 12 नून यानी 12 नून के बाद जो भी टाइमिंग होता है ना स्टूडेंट्स उसको हम 24 आवर्स में 13 के बाद काउंट करते हैं. ठीक है. Okay, now students in a 12 hours format we are having concept of AM and a PM. 12 आवर्स वाला होता है ना, यानी मैंने जैसे बोला था कि जब 12 आवर का क्लॉक टाइम होता है मीन्स ईच टाइम कम्स ट्वाइस इन अ डे यानी पूरे दिन में वो 2 टाइम होता है यानी 5:30 इन द मॉर्निंग एंड 5:30 इन द इवनिंग ऑल्सो. तो जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसको हम AM से कंसिडर करते हैं और 12 नून दोपहर के 12 बजे का जो टाइमिंग से लेकर रात के 12 बजे के टाइमिंग को हम PM कंसिडर करते हैं. और AM का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स एंटी मेरिडियन, राइट. और PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन, राइट. अब स्टूडेंट्स AM कब कंसीडर करते हैं यानी 12 मिडनाइट यानी रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 नून तक के टाइमिंग को हम AM कंसीडर करते हैं. ठीक है. और 12 नून से यानी दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे यानी 12 मिडनाइट तक के टाइमिंग को हम कंसीडर करेंगे PM. Clear everyone? AM PM where we have to use AM and where you have to use PM. Okay, now students here as we have noted already कि 7 o'clock को मॉर्निंग होता है सनराइज और 6:30 को
जो है हमारा सनसेट होता है। अब स्टूडेंट सनराइज जो मॉर्निंग में होता है तो वो टाइमिंग को हम AM में इंडिकेट करेंगे, और 6:30 जो है आफ्टरनून 12 इवनिंग में होता है ना, यानी दैट टाइम वी हैव टू कंसिडर इन अ PM. सो हियर जस्ट वी हैव टू मेंशन दैट AM and PM. Okay, and this one I'm given you homework as here you have to write down in 24-hour format, यानी इस क्लॉक कहाँ पे ऐसी जगह पे है जहाँ पे 24 आवर्स की क्लॉक टाइमिंग का फॉर्मेट यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, so students here you can see we have complete our textbook work, all the work in a right chapter number 4 tick tick tick. I have clear everything, CW exercise also, right? Students इसकी जैसे ही एक्सरसाइज भी एक है आपकी कि यानी आपको डेट दी गई होगी, 2 डेट्स और मंथ्स भी चेंज हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कैसे नंबर ऑफ डेज काउंट किए, इसी तरह से आपको नंबर ऑफ डेज का भी एक CW वर्क का एक्सरसाइज आएगा। तो इसी तरह से आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करके टोटल कितने डेज है 2 डेट्स के बीच में वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिस 2 एक्सरसाइज विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। और फिर आवर्स काउंट करने वाला है कि अगर 2 o'clock से लेकर 4 o'clock तक कितने आवर्स होते हैं, राइट? टाइम लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, सो एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन, एंड यस ये वाला भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, दैट इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम 12 आवर टू 24 हाउ इट इज। ओके, सो आई होप एवरीवन क्लियर इट। ओके, सो टिल देन एवरीवन, सो स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सरसाइज कि अगर हमें 12 आवर की क्लॉक टाइम में अगर कन्वर्ट करना है तो किस तरह से। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको ये ध्यान में रखना है 0 से 12 या फिर 1 से 12 के बीच में अगर कोई टाइमिंग दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो टाइमिंग फॉर्मेट दिया है कन्वर्जन से पहले, तो अगर 1 से 12 के बीच में है यानी जो भी टाइमिंग है वो एज इट इज ही रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है। 12 आवर का क्लॉक टाइमिंग यानी यहाँ पे आंसर 12 आवर्स में ही होना चाहिए, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब 12 के अंदर ही है तो टाइमिंग को एज इट इज लिखना है और उसके पीछे AM लगा देना है। और अगर टाइमिंग 13 से ज़्यादा है 00 तक या 24 तक, तो उसको हमें अगर यहाँ पे दिया है सपोज 21, तो 21 कितने होते हैं 12 आवर्स में, 9 o'clock को 21 कहते हैं ना, तो 9 लिखना है और जब भी कन्वर्ट करो तो उसको PM लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हियर 6:30 आवर्स यानी 6:30, वो आप देख सकते हो 6 0 से 12 के बीच में है, यानी टाइमिंग एज इट इज लिखना है 6:30 और AM लगा देना है AM, बिकॉज वी डोंट हैव एनी कन्वर्टेड। 9 आवर्स देन 9 AM। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ध्यान से 23:55, हियर वी आर हैविंग नंबर विच इज ग्रेटर देन 12. Now we have to convert this 23 into 12 hours. So 23 means in a 12 hours, what was that? It is 11. So 11:55 and we have converted means this timing showing after 12 noon. Means here we have to use PM. Then 21:05 यानी 21 यानी कितने होंगे 9 o'clock. So 9:05 PM. Okay. हियर स्टूडेंट 12 आवर्स यानी दोपहर के 12 आवर्स का मतलब होता है 12 नून, और 00 आवर्स हम कंसिडर करते हैं एट 12 नाइट यानी 12 मिडनाइट को हम कंसिडर करते हैं 00 आवर्स। नाउ लाइकवाइज स्टूडेंट्स हियर वी हैव टू चेंज इट इन 24 आवर क्लॉक टाइम। पहले हमने 12 आवर्स में कन्वर्ट किया, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 24 यानी 1:30। नाउ स्टूडेंट्स हियर वी हैव टू सी PM एंड AM। अगर वो AM में है तो टाइमिंग एज इट इज लिख दो और आवर्स पीछे लगा दो AM की जगह पे इंस्टेड ऑफ AM, और अगर PM में है मीन्स हमें उसको कन्वर्ट करना हो किस तरह से 1:30 PM यानी 1 यानी 12 के बाद आपको वो नंबर्स काउंट करते जाना है, यानी 12 के बाद 1 यानी कितने आवर्स होंगे 13 और 30 आवर्स। स्टूडेंट्स मिनट्स में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज वी हैव टू चेंज ओनली आवर, तो मिनट्स जो भी दी है वो एज इट इज ही आपको लिखनी है। ठीक है, हियर इट इज गिवन 6 PM। नाउ अगेन स्टूडेंट्स PM मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इट। तो अगर स्टूडेंट्स 24 आवर्स में अगर हम 6 देखें तो 6 कितने होते हैं आफ्टर 12, इफ यू आर काउंट फॉर 6 इट शोज 18 आवर्स। सो हियर 18 आवर्स, 12 नून यानी 12 आवर्स, 12 मिडनाइट यानी 00 24 आवर्स, 5:20 PM again PM means we have to convert it, right? 17:20 hours. 11 AM AM है यानी जो भी टाइमिंग है as it is लिख देना है 11 hours. Clear? And these 2 exercise I have already explained you. Yes or no? ये मैंने आपको explain कर दिया है ना? Okay, count the number of days भी कर दिया है and timeline also I have explained you. So students here I have complete your chapter number 4. Tick tick tick. If you are having still any doubts, you can ask me in a comments. Yes students, एक और बात, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में लिख के भेज सकते हो। ओके, सो एंड येस कीप योर नोटबुक्स एवरीथिंग कंप्लीट, जो भी हम PDF फॉर्म में भेज रहे हैं मेक इट राइट इन योर CW. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।